Hi guys. So in the last lecture we had seen some of the motions. Now moving to the ahead and moving to the motion of thanks. So Article 87 provides the two instances when the president specially addresses both houses of the parliament. So two instances हो सकते हैं जब जो presidents हैं वो दोनों houses को address करें. The President of India addresses both the lower and upper house at the beginning of the first session. तो कुछ जनरल इलेक्शन जब भी होंगे उसके बाद जो बिगनिंग होगी वो वाला टाइम and the reconstituted lower house meets for the first time. ठीक है. The president also addresses both the houses at the beginning of the first session of each year. The president's speech essentially highlights the government policy, priorities and plans of upcoming years. ठीक है. बेसिकली कोई जनरल इलेक्शन होना ना है तो वो तब के टाइम एंड जब हर साल जो फर्स्ट सेशन होगा वो तो एड्रेस इज नथिंग बट द ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट करने वाली है वो. तो बेसिकली ये एड्रेसिंग है ये इसको अगर ब्रिटिश में बोलो तो ब्रिटिश में इसको बोलते हैं स्पीच फ्रॉम द थ्रोन. बेसिकली ब्रिटिश में भी सेम किया जाता है तो वहाँ पे स्पीच फ्रॉम द थ्रोन बोल देते हैं. तो 87 क्लॉज 2 सेट कॉन्स्टिट्यूशन requires that provision should be made by the rules regulating the procedure of either house of the allotment of time of discussion of the matters referred in the president's address. It is basically it requires that provision. ठीक है, rules और regulation के हिसाब से. Moving next, motion of thanks is a constitutional necessity. ठीक है. Once the discussion concludes, the motion is put into vote. If this motion is not passed in the House, it will mean defeat of the government. Due to this, it will create a opportunity for the opposition to criticize the government for its lapse and failure. Motion of the thanks अगर पास नहीं होता, देखो अगर आपको कोई थैंक्स एक्सेप्ट ना करे, हाँ, आप किसी को थैंक्स बोलो एंड सामने वाला कह दे कि डू आई नीड दिस, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, तो आपकी ऑनली बेइज्जती होगी. ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग ना. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. A member of a parliament can raise if he or she thinks the House is not following the rules of procedure of the House or any provision of the Constitution that regulate the House. कोई भी मेंबर है तो ये रेज कर सकता है कि जो भी रेगुलेशन बनाए गए हैं, चाहे वो हाउस के रेगुलेशन है या फिर ऐसे रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाउस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, वो पालन नहीं हो रहे हैं. प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उस काम नहीं कर सकता है, वो ये मतलब रेज कर सकता है ये इशू. तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे वो इसको अलाउ कर सकते हैं कि आप ये डिस्कशन के बीच में भी कर लो. मतलब जैसे कोई एक टॉपिक चल रहा है उसको जैसे ही ख़त्म हुआ और सेकंड टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम है, इस टाइम में आप ये वाला डिस्कस कर लो. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो नहीं हो रहे. अगर it relates to the maintenance of order in or arrangement of business before the House. It is usually raised by the opposition member to exercise some control over the government. तो बेसिकली नथिंग, अगर देखो गवर्नमेंट कुछ बोले जा रही है तो बेसिकली ऑपोजिशन वाले क्या करेंगे मैक्सिमम टाइम ये इशू रेज कर देंगे कि सर ये पालन नहीं हो रहा. तो कंट्रोल रहता है ना. अगर आप फॉर एग्जांपल बैट्समैन प्ले करे जा रहे फ्लो तोड़ना है उसको तो आप टाइम आउट ले लो, बैट्समैन थोड़ा सा फ्लो से आउट हो जाए. अगर वो उसी तरह से खेलता रहा तो फिर वो मुश्किल है जीतना. President officer Presiding officer decision on whatever the point raised by the member is a point of order is final. ठीक है. जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे जो वही डिसाइड करेंगे स्पीकर साहब कि जो रेज किया गया है वैलिड है कि नहीं और इस पर कोई डिबेट नहीं होगी. ठीक है. Half an hour discussion. The speaker may allow half an hour discussion on 3 sittings in a week.
for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of recent question, oral or written, and the answer to which needs more simplification on the matter. तो हाफ एन आवर डिस्कशन की जा सकती है, 3 सिटिंग्स जो वीक की होंगी उनमें। किसके लिए? जो भी इम्पोर्टेंस मैटर होंगे, रिसेंट जो क्वेश्चन चल रहा होगा उसके रिलेटेड जो मैटर होगा, ठीक है, ओरल हो या रिटर्न हो, ठीक है, तो उसके आंसर्स देना, या फिर ऐसा लगे कि ये वाला मैटर चल तो रहा है बट इसके साथ ये मैटर कनेक्टेड है, तो ये होल जो सम में जो क्या है ये टफ हो जा रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसको तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, इसको भी तो आपको डिस्कशन दोनों पे करनी पड़ेगी, तो मतलब ऐसे टाइप के बेसिकली टू सिंप्लीफाई द थिंग्स उसको और डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इट इज नोन एज अ 2 hour डिस्कशन। मेंबर्स यूजुअली रेज मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर स्पीकर सेटिस्फाई है कि ठीक है इट फिट्स द थिंग, तो वो अलाउ कर देंगे ये शॉर्ट डिस्कशन। 2 days अलाउ होते हैं, और हमने यहाँ 3 days देखे हाफ एन आवर में, तो दिस इज 3 days, 2 days। There is no formal motion or voting before the house of each such discussion से मतलब वोटिंग वाटिंग नहीं होती, सिंपल मतलब उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 53 से है स्पेशल मोशन, a matter that cannot be raised during ठीक है क्वेश्चन आवर, हाफ एन आवर प्लस शॉर्ट डिस्कशन, एडजर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन, कोई ऐसी चीज जो इन सब में ना आई हो जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, उसको स्पेशल मोशन बोलते हैं। Resolutions, a resolution is a very different form of motion in a way all resolution are substantive motions। कोई भी रेजोल्यूशन आएगा वो सब्सटेंसिव मोशंस होंगे, हम देख चुके हैं सब्सटेंसिव मोशंस क्या होते हैं, लेट मी जस्ट रिकॉल, ठीक है। ओके, दिस वन, ओके, सो इट इज सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल, जिसमें खुद में इतनी पावर होती है कि उससे डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है, फुल ऑफ थम, फुल टॉपिक, ठीक है। तो ऑल जो भी रेजोल्यूशन होंगे वो सब्सटेंसिव मोशंस होंगे। दैट बीइंग सेड, एनी मेंबर इन द पार्लियामेंट कैन मूव अ रेजोल्यूशन ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। The discussion on the resolution is strictly to the point. Once a resolution is moved, it cannot be withdrawn. The main difference between motion and resolution is not all the motions are voted upon, whereas all resolution 18 are voted upon, ठीक है। अब मोशंस के लिए वोटिंग नीड नहीं है हर एक के लिए, फॉर एग्जाम्पल हाफ एन आवर डिस्कशन शॉर्ट डिविजन के लिए नहीं है ज़रूरत, रेजोल्यूशंस के लिए वोटिंग चाहिए। रेजोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर लेके आएंगे, गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम देख चुके हैं फ्राइडेज को मिलता है टाइम, और अकॉर्डिंग टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन गवर्नमेंट लेके आएगी, मंडे टू थर्सडे किसी डेज भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कोई भी लेके आ सकता है, प्राइवेट या फिर मिनिस्टर, जो भी, मतलब ठीक है। तो जनरली इट इज रिगार्डिंग इन द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ऑल रेजोल्यूशन कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसिव मोशन, जो अपने आप में पूरे होते हैं, ठीक है। एवरी रेजोल्यूशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन, बट ऑल मोशंस नीड नॉट, क्योंकि ऑल मोशन, जैसे कि कोई मोशन ले लूँ मैं, एडजर्नमेंट मोशन का ऑल एडजर्नमेंट मोशन का सब्सटेंसिव होना जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। Another stark difference is all motions are not necessarily put to vote of the house। Motions की जरूरत नहीं है, but resolution required to be vote, ठीक है। Coming to next youth parliament, so in the fourth All India WIPS conference in Bombay, one of the recommendation was the scheme of young parliament। To familiar what is young parliament, तो टू फैमिलराइज द यंग जनरेशन विद द प्रैक्टिस जो भी होती हैं पार्लियामेंट में, यंग जनरेशन को बताना कि क्या हो रहा है संसद, लोकसभा, राज्यसभा में, ठीक है।
डिसिप्लिन बनाए रखना, टॉलरेंस एंड टू कल्टीवेट कैरेक्टर, ठीक है? To inculcate in the student and spirit of democracy and enable them to acquire proper perspective on the functioning of the, अगर यंग पार्लियामेंट बनाई जाएगी तो बच्चों को समझ आएगा, यंग जनरेशन को समझ आएगा कि हाउ इट इज़ वर्किंग, दे हाउ डेमोक्रेसी इज वर्किंग, इनमें एक स्पिरिट जाएगी, ठीक है? प्रॉपर जो टाइप हो रहा है, ठीक है, वैसे चलेगा, हाउ इट इज़ वर्किंग, हाउ इट इज़ फंक्शनिंग। ओके, now coming to the bills. A bill is a draft proposal of legislation which becomes law after it passed by both the houses of parliament and assented to be the by the president, of course. देखो, बिल इज नथिंग, इट इज समथिंग, आपने कुछ एक ड्राफ्ट करके आपने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए या फिर कुछ बनाया आपने, ठीक है? वो आपने अपने टीचर को दिखाया कि सर ये बनाया मैंने, टीचर पास थोड़ी कर देगा उसे पहली बार में, ठीक है? तो टीचर ने बोला कि इसमें अमेंड कुछ चेंजेस करो, ठीक है? आप फिर लेके आए उसको, ये जितनी बार भी हो, पर फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, टीचर ने जब पास किया उसे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लॉ। फिर लॉ बन गया मतलब एक टाइप से वो, ठीक है? तो लॉ बनने के बाद मतलब लॉ तभी बनेगा जब देखो राज्यसभा लोकसभा पासिस करेंगी, उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट चाहिए होता है, ठीक है? जो भी लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट करती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ही आते हैं, जो भी प्रपोजल्स आते हैं, ओके? वो भी नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ अ बिल। सो दिस इज नथिंग बट बिल की प्रोसेस क्या है? इनिशिएशन, जो मिनिस्ट्री बनवा रही है वो उस काम करती है उस चीज़ पे, ठीक है? तो पहले मतलब जो कोई मिनिस्ट्री, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उसको अगर पता है कि एक नया मटेरियल आया है जिससे बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, तो वो इंक्लूड करना चाहती है, उससे उससे अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना चाहती है कि किसको दिया जाए, एमएसएमई को दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को या फिर गवर्नमेंट को, जिसको भी, जो भी प्रोसीजर है या इसका यूज़ कौन कर सकता है। फिर वो कंसल्ट करेगी किससे? Then sponsoring ministry consult the law ministry to give advice on the proposal legislation and the unconstitutional implications. अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जाएगी लॉ मिनिस्ट्री के पास कि ठीक है, हमें बताइए कि क्या क्या लॉज बनाए जा सकते हैं, कैसे हो सकता है, लेजिस्लेट क्या हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट बिल है, then the final proposals are then prepared and a summary of proposal जो होगी वो कैबिनेट मिनिस्टर के कैबिनेट के पास जाएगी, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बेसिकली। फिर वो एक ड्राफ्ट होगा, ठीक है, एंड वो लॉ मिनिस्ट्री को जाएगा। लॉ मिनिस्ट्री कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद वो लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा, लॉ मिनिस्ट्री उसका ड्राफ्ट बनाएगी और बिल बनाएगी बेसिकली। अगर ये प्राइवेट मेंबर है, द ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर जिसने बनाया उसको। फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये हाउस में आएगा। तो इससे पहले क्या होना चाहिए? हाउस में आने से पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन साइंड बाय द मिनिस्टर हु इज प्रपोज्ड, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड रीजन क्या था, वो जिसने मिनिस्टर ने, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है वो उसके साइंड होंगे। प्रेसिडेंट सैंक्शन और रिकमेंडेशन इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल होते हैं, इनका कॉन्सेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट साहब से पहले। तो अगर ऐसा कोई बिल है जो रिलेटेड टू मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, तो उसमें प्रेसिडेंट सैंक्शन होने चाहिए उनके पहले ही। अ फाइनेंशियल मेमोरेंडम इन केस ऑफ बिल इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल मेमोरेंडम होना चाहिए अगर कोई एक्सपेंडिचर यानी मनी से रिलेटेड बिल है, ठीक है, कहीं एक्सपेंड मतलब कहीं एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो उसमें प्रॉपर एक मेमोरेंडम होना चाहिए। स्कोप ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, मतलब मेमोरेंडम एक पेज में एक्सप्लेन हो सब कुछ कि स्कोप ऑफ डेलीगेशन क्या है, अगर डेलीगेशन लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड है, ठीक है। फाइनली वो मतलब मिनिस्टर वो कंसर्न मिनिस्टर या मेंबर जो भी है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ type of bill. Type of bill is nothing. Bills are classified in two broader categories. So depending on their initiation in the House by a member of minister.
तो अगर मिनिस्टर लगाता है, if they are initiated by a minister, it is called public bill या गवर्नमेंट बिल। अगर वो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल नितिन गडकरी साहब ने कोई बिल बनाया तो वो गवर्नमेंट बिल बनेगा या फिर पब्लिक बिल बनेगा। अगर कोई प्राइवेट मेंबर है उसने बनाया तो वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिल, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, उसमें क्या कंटेंट है। ओरिजिनल बिल्स, आइडियाज, पॉलिसीज, प्रपोजल्स होंगे। अमेंडिंग बिल्स, कुछ मॉडिफाई या अमेंड करना। एक्सपायरिंग लॉज, मतलब जिसको ऐसा बिल जो एक्सपायर होने वाला है उसको कंटिन्यू करना हो उसके लिए। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल टू क्लेंज द स्टैट्यूट बुक, मतलब अमेंड करना ताकि क्लेंज हो सके, जो भी पुराना बिल है उसको करना, ठीक है, क्लेंज करना, अच्छे से उसको रीबिल्ड करना, वैलिडेट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ procedure. So ordinary bills, money bills, ordinance replacing the constitution amendment. So this is a proper procedure for the bills. On the basis of content and application, first of all, ordinary bill and bill, any bill concerned with general subjects जो भी सेवन स्केड्यूल में दिए गए हैं, इंक्लूडिंग द रेजिडुअल सब्जेक्ट्स नॉट एमुलेटेड इन सेवन स्केड्यूल, that is not concerned with money or financial matter is considered as ordinary bill। जो भी जो भी सब्जेक्ट्स सेवन्थ स्केड्यूल में हैं, इंक्लूडिंग द रेजिडुअल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो नहीं है वहाँ मेंशन, उनको भी लेके, यानी कि जनरल सब्जेक्ट और रेजिडुअल सब्जेक्ट को लेके, that is not concerned with money or financial matter basically, and it is ordinary bill। now next is money bill जो हम इतने डिस्कस कर रहे हैं। तो तो ये जो मेंशन है ये बेसिकली सब क्लॉज ए टू एफ में मेंशन है। बेसिकली हम अभी देखेंगे हमें है क्या। सो जस्ट नॉट हाउएवर अ बिल कैन नॉट बी कॉल्ड अ मनी बिल जस्ट बिकॉज कि उसको फाइन्स और पेनल्टीज के बेसिस पे है, फीस और सर्विसेज के बेसिस पे है, कोई सेरेमिनेशन, ऑल्ट्रेशन, अबॉलिशन, ठीक है, टैक्सेस के रिलेटेड है, तो उसको मनी बिल नहीं बोल दिया जाएगा डायरेक्टली। हम देखिए क्या होता है। तो ये किसके ऊपर होता है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के ऊपर है कि इसको मैं मनी बिल बोलूँ या ना बोलूँ, ठीक है। राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होता ये। The speaker's decision is final in totality and cannot be questioned in any court. While the bill is being transmitted from Lok Sabha to Rajya Sabha and finally the president, the speaker has his certification attached to it. Money bill can only introduce in Lok Sabha, very much important. And recommendation chief president ki that is also an important thing. By a minister, only a minister. तो अगर ये राज्यसभा में बिल जाता है लोकसभा के बाद पास होके, तो ये अमेंड नहीं हो सकता, राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती। वो सिर्फ इस पे रिकमेंडेशन कर सकती है, ये भाई साहब इसमें ऐड कर दो। बट रिकमेंडेशन की मर्जी है भाई साहब लोकसभा की, फिर कि लोकसभा उसको डिसाइड करेगी जो रिकमेंडेशन हो राज्यसभा से आई अभी उसको मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। ऑफकोर्स डिस्कशन के बाद ऐसे मन मर्जी तो किसी की नहीं चलती। एट मोस्ट ऑफ द राज्यसभा कैन डिटेन अ बिल फॉर 14 डेज के लिए अपने पास डिटेन कर सकती है। After that, this bill is considered passed by both the houses and sent to the president, of course. A president has the power कि वो assent दे दें या reject कर दें। वो रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजती इसको, या तो भाई पास करो या फेल करो। यहाँ से जब राज्यसभा लोकसभा से होके आ गया ना वो एक बार, या तो वो पास है या फेल है प्रेसिडेंट साहब के पास। ऐसे नहीं है कि इसको वापस भेज देंगे, ठीक है। बेसिकली कि पास कर लिया जाता है, ठीक है। बिकॉज क्यों देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ, तो आपने फॉर एग्जांपल अपने भाई से पूछा पानी कहाँ है, फिर भाई ने कहा ठीक है इस किचन में मिलेगा। किचन में कहाँ है, तो मैंने अपने दूसरे भाई से पूछा ठीक है किचन में कहाँ है, वो पानी लेके आया। अब वापस पानी मेरे पास ही आया है, मैंने ही तो उसे कहा था पानी लाने के लिए, तो मैं क्यों मना करूँगा पानी के लिए।
कोर्स यही सेम, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ मतलब, ठीक है। सॉरी। Features of financial bill. Financial bills can be further classified into financial bills A and B. So category A is nothing but 117 clause 1. These bills contain not only provision dealing with any matter, so these matter we'll see, and तभी हम money bill full discuss करेंगे. Okay. फाइनेंशियल बिल को ऑर्डिनरी बिल बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर ऑर्डिनरी बिल बन गया तो राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड द बिल, मनी बिल के केस में नहीं कर सकती। However, an amendment other than for reduction or abolition of a text cannot be moved in either house without the recommendation of president, ठीक है, ये तो क्लियर है हमें। कैटेगरी बी, ईटर ऑफ द हाउस। तो दिस विल इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI। तो किसी भी हाउस में ले जाओ इसको बिल को, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, जो भी है ये कर सकता है कोई भी हाउस, ठीक है। डेडलॉक अराइजेज। तो डेडलॉक भी हम कर चुके हैं स्टडी, तो विल सी इट अगेन। जॉइंट सेशन में किया जाएगा, समन किया जाता है, तो डेडलॉक के केस में कैटेगरी बी और फाइनेंशियल बिल के फीचर्स, ठीक है। तो ठीक है, इट इज बेसिकली प्रेसिडेंट है फुल पावर ना, वो रोक सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकंसिडर करवा सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल इम्प्लाइज दैट all money bills are financial bills, but all financial bills are not money bill. Why? फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी आपने सेकंड देखी किसी भी हाउस में, लेकिन मनी बिल किसी भी हाउस में नहीं जाता। मनी बिल सिर्फ पहले जाएगा लोकसभा में। मनी बिल अगर लोकसभा में, राज्यसभा का मनी बिल, तो तभी बोलने का मतलब ये है, फाइनेंशियल बिल जो है, जो मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं सारे के सारे, बट जो फाइनेंशियल बिल्स आएंगे वो मनी बिल नहीं होंगे सारे के सारे। तो उसके लिए आपको कौन सा क्लॉज चाहिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे वैसे मनी बिल के अंदर 1110, ठीक है, ये वाला। ओके, मूविंग नेक्स्ट। ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल्स। These bills are brought before parliament to replace an ordinance with or without modification. तो ऑर्डिनेंस क्या होता था? ऑर्डिनेंस नथिंग, अगर पार्लियामेंट अपने राज्यसभा लोकसभा है नहीं, अगर काम सेशन में नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, ऑर्डिनेंस लेके आएगी, वो प्रेसिडेंट से पास करवाएगी और वो लागू हो जाएगा 6 मंथ के लिए। तो प्रेसिडेंट से पास होता है ये विदाउट सेशन, जब भी सेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। So under 368 can be introduced in either house of parliament, has to be passed each house by a special majority। देख चुके हैं majorities। The no prior recommendation of the president is required to introduction of this bill किसी भी हाउस में। तो प्रेसिडेंट विदहोल्ड अपने पास होल्ड नहीं करके रख सकते इसको, ठीक है। डिसएग्रीमेंट होता है अगर बिल पे, तो जॉइंट सेशन का प्रावधान इसमें नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स, तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं है वो, बट फाइनेंशियल बिल में है वो। ये अभी देखो, ये रहा, अभी पढ़ के आए हम यहाँ से। सिंपल मेजॉरिटी, 3 टाइप्स हो सकते हैं, मतलब सिंपल मेजॉरिटी भी हो सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी भी हो सकते हैं, और स्पेशल मेजॉरिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम यहाँ पे तो 2/3 है ना, लेकिन यहाँ पे 1/2, ठीक है, मतलब 50% से ज़्यादा है, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट बिल में डिफरेंस देख लो। मिनिस्टर्स, पब्लिक बिल मिनिस्टर्स लेके आएंगे, प्राइवेट बिल हम प्राइवेट मेंबर लेके आएगा। पॉलिसीज वगैरह होंगी, कोई मैटर होगा जो इम्पोर्टेंस होगा पब्लिक मैटर के रिगार्डिंग,
तो अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट कर देती है रेयरली, मतलब बिकॉज कोई प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है तो उस पर थोड़ा डिस्कशन होगी फिर ढंग से, मतलब ढंग से क्या, अगर किसी की वैल्यू होगी तो वही सुना जाता है ऑफकोर्स। तो अगर पब्लिक विल लॉस हो गया तो पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और रेजिग्नेशन हो सकती है। ठीक है, रिजेक्ट हो गया अगर ये बिल, बट उस केस में नहीं होती कोई रेजिग्नेशन। नो, 7 डे नोटिस, 1 मंथ नोटिस, सिंपल। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में आता है, मनी बिल यहाँ कहीं भी आ सकता है, मिनिस्टर में आता है, कोई भी मेंबर कर सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ पे राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, उसके पास आया है तो उसको अपने पास 14 दिन के लिए होल्ड कर सकती है। यहाँ देखो 14 डेज मैक्सिमम, बट अमेंड नहीं कर सकती। तो उसको अगर होल्ड करके रख लिया अपने पास तो 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, यहाँ पे अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकती है। तो सर्टिफिकेट बाय स्पीकर, यानी कि अगर लोकसभा से राज्यसभा जा रहा है ये बिल तो बीच में बिल के बीच स्पीकर का सर्टिफिकेट भी लगा होना चाहिए कि हमने पास कर दिया है, ये सर्टिफाइड है। जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं है इसमें मनी बिल में, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में है। ठीक है, डेडलॉक होता है तो सिर्फ, तो डेट डिफीट अगर लोकसभा में हो गया तो रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल। प्रेसिडेंट में क्या हो सकता है, अगर यस करेंगे साहब या नो करेंगे, ठीक है, वापस नहीं भेज सकते, लेकिन इसमें वापस भेज सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड फाइनेंशियल बिल तो हमने अभी देखा, मनी और ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में देखेंगे हम अभी। ओके, मनी बिल फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल बिल प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन चाहिए चाहिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है बी में। कैन नॉट अमेंड, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, पता है हमें। यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, यहाँ पे भी कुछ भी कर सकती है राज्यसभा। अमेंड कुछ भी का मतलब रिजेक्ट या अमेंड, ठीक है, ओनली टू थिंग्स, या पास ऑफ कोर्स। स्पीकर सर्टिफाई, यहाँ पे सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लोकसभा में ये कहीं भी, ये ओके, फाइनेंशियल बिल ए जो है वो लोकसभा में चलेगा, बट ये वाला दोनों में चलता है। नो प्रोविजंस ऑफ जॉइंट सेशन नहीं है यहाँ पे है प्रेसिडेंट, यहाँ पे भी है। ठीक है, जॉइंट सेशन 110, 117 1, 117 3 क्लॉज। ओके, दीज आर सम ऑफ द थिंग ना। ये वाला सेकंड है, ये बेसिकली रिलेटेड टू द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो फर्दरमोर वी हैव लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो पार्लियामेंट का होता है। तो बेसिकली विल सी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोर्स। सो आफ्टर दैट दिस इज जॉइंट सेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, पास कैसे होता है बिल, बजट के बारे में। So we'll see this in next lecture, and for the time being, so we have seen, the money bill और financial bill A और B के बीच में डिफरेंस, B सी द मनी बिल ऑर्डिनरी बिल के बीच में डिफरेंस। सबसे अच्छी बात देखेंगे आप तो जॉइंट सिटिंग मनी बिल में नहीं होती है, लेकिन डेडलॉक होता है तो प्रेसिडेंट साहब कॉल कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल में, और यहाँ पे दोनों में ही हो सकती है, फाइनेंशियल बिल ए और बी में। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखे कैटेगरी ए और बी के बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स। सो देखो, फाइनेंशियल बिल ए जो है वो ऑर्डिनरी बिल ही बन जाता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर अमेंडमेंट अदर देन जो टैक्स और टैक्सेस से रिलेटेड बिल आएंगे उनको नहीं किया जा सकता डायरेक्टली विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट साहब। जॉइंट सेटिंग आ रही है। ठीक है, ऑर्डिनरी रिप्लेसिंग बिल्स सेम देख लिया हमने, ये भी सॉरी, दिस ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग नॉट द ऑर्डिनरी बिल्स। तो हमने ऑर्डिनरी देखा है, ऑर्डिनेंस नहीं देखे, ऑर्डिनेंस ने बता दिया आपको क्या था। मनी एंड फाइनेंशियल बिल्स हमने देख लिए।
ठीक है। बट मनी बिल वो ही देखो, मनी बिल को मनी बिल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें मनी से रिलेटेड ही होता है सब कुछ, फाइनेंस पेनल्टीज या फिर कुछ रिमिशन शिमिशन, ठीक है। और अब जो बिल देख लिए, बिल्स क्या होता है, बिल इज जस्ट अ प्रपोजल जो उसके अपने प्रपोज होने के बाद जब पास हो गया उसके बाद लॉ बन जाता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ बिल देख लिया हमने, इनिशिएशन किसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने वो सोचा कि ये ऐसे हो सकता है तो उसने कंसल्ट किया लॉ मिनिस्ट्री को, ठीक है। फिर कब फिर क्या हुआ कि उस मिनिस्ट्री ने वो बनाया, उसके बाद वो गया कैबिनेट में, कैबिनेट में ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट होने के बाद वो गया लॉ मिनिस्ट्री में, वो चेक हुआ, ठीक है। चेक होने के बाद प्रिंट होके वो हाउस में आया, लेकिन हाउस में आने की भी बहुत शर्तें थी जो हमने देखी, ठीक है। स्पेशल मेंशन, ठीक है, जो नहीं हो चुका किसी भी मोशन में उसको स्पेशल मेंशन में ऐड कर दिया। शॉर्ट ड्यूरेशन देख ली हमने, ये 2 घंटे की है और ये 3 घंटे की है, जो हाफ एन आवर डिस्कशन है। ओके सॉरी, ये 2 घंटे की मतलब 2 दिन हो सकती है हफ्ते में, और ये 3 दिन हो सकती है हफ्ते में, ठीक है। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी हमने देख लिया, ठीक है। मतलब कोई ऐसी को रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे तो उसके लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मोशन ऑफ थैंक्स भी देख लिया हमने, जॉइंट सिटिंग वाला। सेंसर और नो कॉन्फिडेंस भी देख लिया। और आपको ये जो है इसमें आपको मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन देना ही पड़ता है। सेंसर कौन लाता है? ओके, सेंसर इज इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बट ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रिविलेज मोशन देख, नो कॉन्फिडेंस तुमने देख ही लिया ना, सेंसर और नो कॉन्फिडेंस देख लिया। प्रिविलेज मोशन इज नथिंग बट निंदा करने के लिए जस्ट ना, ठीक है, किसी ने अगर रूल्स गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, रूल्स तोड़े। क्लोजर मोशन, क्लोजर और डिलेटरी मोशंस, ठीक है। डिलेटरी इज जस्ट टू आज की डिबेट कल करेंगे, ठीक है, आज क्लोज करते हैं, ठीक है। क्लोजर इज नथिंग बट उस डिबेट को शॉर्ट कर देना और बोलना कि ठीक है अब क्या करेंगे, उसको वॉट में कर दो। सिंपल हो सकता है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कैंगरू हो सकता है, ग्लूटोइन हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जनरल मोशन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सब्सिडियरी मोशंस देख लिया हमने। सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली मेन का सब्स्टिट्यूशन, नो डे येट, इसका कोई ऐसा चीज़ इसके लिए डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। बट वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से पहले होता है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो आता है एडजेंसी वाला। ओके, एंसिलरी मोशंस ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए, सॉरी सब्सिडरी के अंदर आ गए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सब्सिडियरी वो हो गया जिसका अपने आप में वो कैपेबल नहीं है डिसीजन देने की, तो उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी डिसीजन देने के लिए। तो एंसिलरी बोल लिया, सुपरसीडिंग बोल लिया, ठीक है। सब्सटेंसिव और सब्स्टिट्यूट हमने देख लिया। क्वेश्चन आर हमने देख लिया, ठीक है। जो फर्स्ट आर हो गया क्वेश्चन आर हो गया, 0 आर फर्स्ट आर क्वेश्चन आर के जस्ट बाद। मोशन हमने देख लिया कि कोई भी प्रपोजल, कोई भी डिसीजन करवाना हो तो उसको मोशन के बेस में बोल दिया, ठीक है। बेसिकली कोई क्वेश्चन है वो मोशन बोल दिया उसको, ठीक है। बिजनेस हमने देख ली गवर्नमेंट और प्राइवेट की। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।